Hello friends, my name is Asif Ramzan and I welcome you all to Inspire Civils. Inspire Civils is a free online coaching academy started by some of the finest civil service officers and aspirants for you. We will provide you free video lectures, we will provide you study material, and we will take care of your preparation through test series as well. When I'm saying free, we mean it. We are not here to earn money, we are here to help you. We have our website, and you can log on to our website www.inspirecivils.com. We have our Facebook page Inspire Civils. You can find free study material, you can find gist of the Hindu editorial on daily basis, you can find current affairs, and this page will help you in your preparation. Now, I will take care of the public administration subject, and my name is Asif Ramzan. I have done MBA from one of the top business schools of India. I have done masters in public administration. I have qualified NET in public administration, and I have appeared in interview twice so far. I have qualified written of CAPF Assistant Commandant examination, and I will take care of public administration. As far as public administration is concerned, public administration is one of the finest and one of the favorite subject of aspirants. Reason being कि study material is freely available, then coaching is available freely, and it's easy to understand this subject. It's easy to score in this subject. Again, this public administration helps you in GS as well. There are many reasons. Last time there were certain candidates who complained that they are not able to understand English properly. Now I will use English, Hindi, Urdu. My motto is to make you understand concepts. My motto is not to impress you. So I'll use Hindi, Urdu, English just to make you guys comfortable and take care of your preparation. ओके, कमिंग टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए, एज फार एज राइटिंग प्रैक्टिस कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, राइटिंग प्रैक्टिस आपने डेली कुछ ना कुछ लिखना है। इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, यू कैन राइट एनीथिंग, यू you have any quote, you can just comment on that, or any leader, any politician has said anything, you can comment on that, or whatever you like, but you have to write every day. And writing practice is very important, be it GS or be it your public administration subject or any other subject. Writing practice will definitely help you. Then when we are talking about the public administration, you have to read the standard books. Okay, don't depend on the study material of the coaching centers too much. Don't depend on the notes of any topper, because आप देखिए क्या होता है कि अगर मैं अपने नोट्स बनाता हूँ तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाता हूँ, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इफ़ यू रीड माय नोट्स। ठीक है ना, अपने कॉन्सेप्ट समझिए, अपने नोट्स खुद बनाइए, and don't try to mug up things. See, public administration is not subject like for example, if we take example of anthropology, even if you mug up certain things, definitely थोड़ा सा कुछ चल ही जाएगा, लेकिन when it comes to public administration, तो mugging up things will not at all help, it will backfire in examination। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं रोज़, तो यू हैव दैट एक्स्ट्रा मटेरियल। ठीक है ना, उस एक्स्ट्रा मटेरियल का बेनिफिट आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूर मिलता है। यू कैन एड द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड और लर्न इन करंट अफेयर्स, यू कैन एड वट एवर यू हैव read in current affairs, and you can score well while you are writing answers in the mains. Then again, don't read too many books. I have seen candidates, they waste 5 days 10 days understanding a simple concept. वो क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट पहले एक बुक से पढ़ेंगे, फिर दूसरी बुक से पढ़ेंगे, so they waste their time. ऐसा नहीं करना है, सिंपली कॉन्सेप्ट समझना है, डेप्थ तक जाना है, उस पर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर करंट अफेयर्स में उस टॉपिक के रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कुछ मिलता है, उसको ऐड करना है, दैट्स ऑल। डोंट unnecessarily waste your time. Then you have to take care of this thing. There are certain concepts that we learn in paper 1, and then you can apply them in paper 2. You can learn the concepts in paper 1, and those concepts can be applied in paper 2. That I'll tell you, that's my job.
Okay, now coming to the books, see Fadia and Fadia, Mohit Bhattacharya, Avasthi and Maheshwari, uh, Prasad and Prasad, then Ignu Material, Aurora and Goyal. Okay, थोड़ा सा बात करते हैं इन बुक्स की. देखिए फादिया एंड वन मोर बुक इंपॉर्टेंट थिंग, लक्ष्मीकांत. देखिए लक्ष्मीकांत एक चीज़ है लक्ष्मीकांत के साथ कि जैसे आपको पता है नाम ही काफ़ी है लक्ष्मीकांत का. लक्ष्मीकांत की जो बुक है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं आपको, दैट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट स्ट्रेट वे हार्ट तक जाएगा ये कॉन्सेप्ट के. ये बुक जो है ये स्ट्रेट वे, अगर आपने कोई भी चीज़ समझना है चाहे वो एन पी ए हो या कोई भी चीज़ इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में समझनी हो, ये आपको 2 मिनट में झट से कॉन्सेप्ट समझा देगा. इस बुक से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा. लेकिन ये बुक मेंस में आपकी नैया पार नहीं करा सकती. उसके लिए आपके पास कंटेंट चाहिए. ठीक है जी, कंटेंट आपको मिलेगा एक तो करंट अफेयर्स से, और ये जो बुक है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिलेगा. ठीक है, लेकिन इस बुक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, स्ट्रेट वे ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझाते. ठीक है, इससे आप अपना कंटेंट ऐड करिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए. ठीक है, देन वी हैव अवस्थी एंड महेश्वरी, अगेन बहुत अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं कंटेंट भी हैं, दोनों चीज़ें हैं. देन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स पे प्रसाद एंड प्रसाद. देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स पे यहाँ प्रसाद एंड प्रसाद से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इस पे फोकस करिए आप. देन इग्नू मटेरियल. ठीक है जी, इग्नू मटेरियल आपकी हेल्प करेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं हो रहे हैं. देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू बाय दिस मटेरियल, आई विल अपलोड इट ऑन माय वेबसाइट. देन अरोरा एंड गोयल, ये इंपॉर्टेंट है आपका जो पेपर 2 है वहाँ के लिए. देखिए अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस के रिपोर्ट्स हैं, कुछ जर्नल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं. आपने क्या करना, मैं आपको उसका जिस्ट दूंगा. ठीक है, ऑल रिपोर्ट्स विल बी अपलोडेड ऑन माई वेबसाइट इंशाल्लाह वेरी सून. वो उसका चीज़ आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, इसमें अगेन आई शेयर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि क्या लिखना है, कहाँ से निकालना है. आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जो कमीशंस की जो रिपोर्ट्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेके मैं सब कुछ अवेलेबल रखूँगा, यू नीड नॉट टू वरी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेथोडोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखिए यहाँ पे मैंने देखा वाइल रिकॉर्डिंग थिंग्स, एक चीज़ हो जाती है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं. जैसे मैं यहाँ मेथोडोलॉजी पढ़ूंगा, मैं मेथोडोलॉजी देखूंगा लेकिन मैं मीनिंग अब मेरे मुंह से निकल जाएगा. तो जहाँ पे ये स्लिप ऑफ टंग होती है मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूँगा कि स्लिप ऑफ टंग कहाँ पे हुआ है. उस चीज़ का अपने फिर से ध्यान टेंशन नहीं लेनी है. लेकिन अगर आपको स्लिप ऑफ टंग होने के बावजूद भी आपको खुद ही समझ आता है कि व्हाट आई एक्चुअली मेंट, तो फिर आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट. मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कहाँ पे बोलने में गलती हुई है, मैं आपका वहाँ से पूरा क्लियर कर लूँगा कॉन्सेप्ट. ठीक है जी, नाउ कमिंग टू द मेथोडोलॉजी. देखिए आई हैव सीन मैनी वीडियोज़ अपलोडेड ऑन इंटरनेट या यूट्यूब एंड और भी साइट्स पे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डेफिनेशन उठाई है बुक से, वही डेफिनेशन आपको कॉपी करके सुनाते हैं. आई थिंक दैट्स ऑफ नो यूज़, उससे कुछ नहीं होने वाला. डेफिनेशन मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ, डेफिनेशन आप भी खुद पढ़ सकते हैं, तो दैट्स ऑफ नो यूज़. ओके, नाउ सी मैं क्या करूँगा, मेरा फोकस होगा आपके कॉन्सेप्ट बनाना एंड आपकी फाउंडेशन बनाना. ठीक है ना, ये मेरा जॉब है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपने क्या करना है, अपने राइटिंग प्रैक्टिस रोज़ करनी है. राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा आपने और राइटिंग प्रैक्टिस जब भी आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपने अपनी वोकैबलरी का ध्यान रखना है. वोकैबलरी कैसे बढ़ेगी, जब आप लिखेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, अपने जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, एडिटोरियल्स अच्छे से पढ़ेंगे. ट्रस्ट मी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं एंड आई विल इंशाल्लाह मेक थिंग्स वेरी क्लियर टू यू. घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है जी, अब बस रिलैक्स हो जाइए, टेंशन नहीं लीजिए एंड ट्रस्ट मी, मैं आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, आई विल गिव माई बेस्ट. ठीक है जी, अभी देखिए हम आते हैं मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे. हमारा जो सिलेबस है उसमें है मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए हम पहले समझते हैं मीनिंग क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. ठीक है, एक तो देखिए
हम ऐसे समझते हैं कि जो पहले हिस्ट्री ऑफ मैन अगर हम देखें, जो एंशियंट टाइम में इंसान रहता था, जैसे थर्ड या फोर्थ क्लास स्टैंडर्ड की बुक्स में ऐसे होता था समवट। अब वो जब वो इंसान था वो यहाँ से वहाँ घूमता था, ही वॉज वैंडरर, और वो उसके लिए घूमता था फूड के लिए और शेल्टर के लिए। वो बस दो चीज़ों के लिए भागा दौड़ी करता था, फूड एंड शेल्टर, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसे जो रोज़ रोज़ घूमता था तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, अकेलापन हो जाता था, या दो चार लोग घूम रहे होते थे तो एनिमल्स का डर लगता था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब क्या किया कि ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड टू लिव टुगेदर, ठीक है जी। अब उन्होंने सोचा कि चलो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल से एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो आने लगे, कुछ गाँव में आने लगे। अब ऐसे ही मान लीजिए कि एक विलेज है, XYZ विलेज है। विलेज तो नहीं, अब क्या किया, जो पुराने लोग जो पहले घूम रहे थे उन्होंने सोचा हम जाते हैं एक जगह पे, वहाँ पे हम XYZ विलेज बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 500 लोग आ गए यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है जी। अब ये 500 लोग जब रहने लगे तो कुछ इश्यूज आ गए, ठीक है जी। इश्यूज लाइक कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अगर 500 में से 2 लोग या 4 लोग चोर हैं या किसी ने कत्ल कर दिया तो उसे सज़ा कौन देगा, इसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है जी। अभी अगर 500 लोग, ये जो गांव है इसमें 500 लोग अगर रह रहे हैं, उनकी डिफेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। ये इश्यूज आ गए इनके सामने। उसके बाद हेल्थ का ध्यान रखना है कि अगर कोई बीमार हो गया, क्या सारे जंगल जाएंगे मेडिसिन लेने के लिए, जो होती है जड़ी बूटी हर्ब्स या कुछ, ठीक है, या इसके लिए क्या करें, ये इशू आ गया। फिर डेवलपमेंट का इशू कि पानी चाहिए लोगों को, उसके लिए कुआं चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, रोड चाहिए, अब 500 लोग रह रहे हैं तो वो कहाँ से आएगा। तो ऐसे इश्यूज आने लगे, जो 500 लोग इकट्ठे रहे तो ऐसे इश्यूज आने लगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसी एक विलेज है, XYZ विलेज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये रहने आ गए इस जगह पे। अब अगर ये मीटिंग करते हैं, पीपल हैड अ मीटिंग एंड उन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड की, 500 लोगों ने कुछ चीज़ें डिसाइड की मिल बांट के। इन्होंने कहा कि जो मिस्टर एक्स हैं, सबसे दानिश्वर, सबसे वाइजेस्ट आदमी, उनको हम किंग बना लेते हैं। उसके बाद 10 जो स्ट्रॉन्ग लोग थे, 500 में से 10 बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे, उनको बोला कि आप डिफेंस का ध्यान रखिए, और वो मान लीजिए डिफेंस ग्रुप बन गया, ठीक है जी। अब 5 इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड मैन थे, उनको लॉ एंड ऑर्डर ग्रुप बना दिया, उनको बोला आप लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद 5 स्किल्ड लोग थे जिन्हें काम आता था दीवार बनाना या छोटा जो भी होता था वो बनाना आता था, तो उनको बोला कि ये डेवलपमेंट ग्रुप है, ये डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगे। उसके बाद 5 नॉलेजेबल लोग जिन्हें मेडिसिन का थोड़ा सा हर्ब श्रब्स का पता था, तो उन्हें बोला था ये हेल्थ ग्रुप है, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए। उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी उन्होंने डिसाइड किए, सब लोगों ने, 500 लोगों ने मिलके ये चीज़ें डिसाइड करी, ठीक है। अभी कुछ टाइम बाद अगर इस गांव को देखते हैं तो ये गांव अच्छा चल रहा है, ये तरक्की कर रहा है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ऑल द ग्रुप्स आर वर्किंग टुगेदर एंड देयर कोऑर्डिनेटेड वर्क। जैसे ये ग्रुप, ऑल द ग्रुप्स, जैसे डिफेंस ग्रुप, लॉ एंड ऑर्डर ग्रुप, डेवलपमेंट ग्रुप, हेल्थ ग्रुप, ये सारे मिलके काम कर रहे हैं गांव वालों के लिए, ठीक है ना। अब जब देखते हैं ये गांव तरक्की कर रहा है, ठीक है ना। अब इन सब का काम, ऑल ग्रुप्स आर वर्किंग टुगेदर, देयर कोऑर्डिनेटेड वर्क इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ XYZ विलेज, ठीक है। अब डिफेंस ग्रुप का काम इस गांव में, प्लस लॉ एंड ऑर्डर ग्रुप का काम, प्लस डेवलपमेंट ग्रुप का काम, प्लस हेल्थ ग्रुप का काम, ये सारे जो मिलके काम कर रहे हैं वही इस गांव का जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे उसको, ठीक है ना। इन सब ग्रुप्स के काम को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम देंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको हाइपोथेटिकल सी एग्जाम्पल समझाई आपका बेस बनाने के लिए, एग्जाम्पल ही समझाई, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है क्योंकि ये बेकार सी एग्जाम्पल है, बस समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने JNK स्टेट पे। देखिए JNK स्टेट में हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, R&B है, जम्मू कश्मीर पुलिस है। ये सारे डिपार्टमेंट्स मिल के क्या करते हैं, हमारा जो स्टेट है उसको चलाते हैं, ठीक है। अभी देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट का काम प्लस एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम प्लस R&B डिपार्टमेंट प्लस JNK डिपार्टमेंट, सब का काम मिलके जो है इसे हम बोलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट, ठीक है जी। ये सब जो मिलके काम करते हैं, इनकी काम की वजह से ही हमारा स्टेट चलता है, और ये जो सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये जब मिलके काम करते हैं, इनके काम को हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी।
अब आते हैं थोड़ा सा बुक्स पे। आई होप आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अभी हम आते हैं बुक्स पे। एंड और एक चीज़ ध्यान, एक तो ये हो गया एज ये जो काम सारे मिलके करते हैं, एक तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। दूसरा हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सब्जेक्ट भी है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा बुक्स की डेफिनेशन पे हम जाते हैं। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, जो निकला है एडमिनिस्टर, ठीक है जी। अब एडमिनिस्टर की मीनिंग है टू सर्व, टू केयर और टू मैनेज, ठीक है जी। देखिए जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल में मेडिसिन होती है, डॉक्टर साहब जो हैं वो चेकअप करते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारा ध्यान रखते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट हमारा ध्यान रखते हैं और सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। सिंपली अगर मान लें कि लोगों का ध्यान रखना, उसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, सिंपली लुकिंग आफ्टर द पीपल, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलके क्या काम करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, तो इसे कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब डिपार्टमेंट्स के काम को कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए public administration is defined as an organization and management of human and material resources to fulfill objectives laid by the government, ठीक है जी, objectives laid by the government। अब ये डेफिनेशन मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल द ग्रेट शाह फैसल साहब वो कहते हैं कि जो 10th क्लास के रिजल्ट्स हैं वो हमें 100% करने हैं, कोई फेल नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि रिजल्ट को जी 100% करना है, ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, एक तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका 100% अचीव करने का, इसके लिए आपको ह्यूमन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, जैसे आपको टीचर्स चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, एग्जामिनर्स चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपको मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए, ठीक है। इनको अच्छे से मैनेज करना, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज को, एक तो मटेरियल्स को अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए। जो हमारा 100% टारगेट है 10th का रिजल्ट करना, वो ऑब्जेक्टिव है, वो इन चीज़ों से फुलफिल हो जाए। आई होप ये डेफिनेशन भी क्लियर हुई हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ताकि ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट का वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। देखिए एज अ प्रैक्टिस अगर देखा जाए, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस अगर करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात, तो वो बहुत पुराना प्रैक्टिस है। जब से 4-5 लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया तब से छोटी मोटी फॉर्म में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ एग्जिस्ट करती थी। लेकिन एज ए डिसिप्लिन अगर देखें, जैसे हम पीएचडी करते हैं, हम मास्टर्स करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो बिल्कुल नया है, ठीक है, और फ्रेश सब्जेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा और बात करते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्या है, पहला वाला कोऑपरेटिव एफर्ट, ठीक है, सबका कोऑपरेशन, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसके बाद पुलिस का, उसके बाद आरएनबी, उसके बाद एजुकेशन, इन सब का कोऑपरेटिव एफर्ट है, ठीक है जी। कवर्स ऑल 3 ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। अभी ये जो चीज़ है ये डिबेटेबल है। अभी अब ऐसे समझिए, जुडिशरी जो भी ब्रांच है गवर्नमेंट की, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन सब का काम, ठीक है, और इनकी रिलेशन आपस में। एज अ फील्ड ऑफ स्टडी भी है, जो मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोवाइड सर्विस फंक्शंस टू पीपल परफॉर्म टू अटेन गुड लाइफ, ठीक है जी। मतलब कि ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये जब आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपको आरएनबी, पुलिस, सारे डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तब आपकी गुड लाइफ बनेगी। क्योंकि गुड लाइफ के लिए ज़रूरी है हेल्थ अच्छी हो, उसके बाद एजुकेशन अच्छी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपको प्रोवाइड करेंगे तो वो आता है, इट कम्स अंडर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। आई होप अभी तक क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। थोड़ा सा इसको पॉज कीजिए वीडियो को, थोड़ा सा सोचिए इस पे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और आगे जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होता जाएगा, ठीक है जी। अभी देखिए 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जर्मन जो स्कॉलर्स थे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया इस पे, ठीक है। अब काम क्यों नहीं किया, टू ग्रेट सिस्टम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड इन वेस्ट, ठीक है। वेस्ट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम्स डेवलप हो गए। पहला एंग्लो अमेरिकन, ठीक है जी, अमेरिकन आपको पता है क्या होता है अमेरिकन, और एंग्लो मीन्स इंग्लैंड वाला, ठीक है, इंग्लिश का। तो दो सिस्टम्स वेस्ट में आगे जो बहुत ही डेवलप्ड थे, एक तो एंग्लो अमेरिकन,
इंग्लैंड प्लस अमेरिका का, इसमें डीप रूटेड जो था ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, वाइड सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें वोटिंग राइट्स की बात थी, इसमें डेमोक्रेसी की बात थी, इसमें सिटीजनशिप राइट्स के बात थे, ठीक है। एक तो ये सिस्टम। दूसरा फ्रांस में हो गया नेपोलियन का। नेपोलियन तो आप सबको पता है वो कैसे हुकूमत करते थे, ठीक है। इसमें था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब वही ऑटोक्रेसी की मैं किंग हूँ, मैं जो चाहूँ वही करूँगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, जो मैं मेरी मर्जी है मैं वो करूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक सा था, और ये जो वाला एंग्लो अमेरिकन था ये डेमोक्रेटिक सा था, ठीक है जी। दो ग्रेट सिस्टम्स डेवलप हो गए, एक तो एंग्लो अमेरिकन और फ्रांस में नेपोलियन का, ठीक है। आगे हमें और पढ़ना है, आप टेंशन नहीं लीजिए। पहला अब डेफिनेशन की अगर बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लेट मी टेल यू वन थिंग एंड यू नीड टू रिमेंबर इट फॉर एवर, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन आज तक नहीं है, ठीक है ना। कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, सारे अपने हिसाब से तुक्के मारते हैं। अभी देखिए जो मैंने आपको बोला था ऊपर, ब्रॉड एंड नैरो कॉन्सेप्ट आया था। देखिए कुछ लोग बोलते हैं ब्रॉड डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कुछ लोग बोलते हैं नैरो डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। अभी देखिए ब्रॉड डेफिनेशन क्या होता है। ब्रॉड डेफिनेशन मतलब जो भी गवर्नमेंट के तीनों ब्रांच हैं, थ्री ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये एल डी वाइट थे, आई डी वाइट नहीं, एल डी वाइट। इन्होंने कहा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सारा कुछ आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है ना। ये एक क्या है, ब्रॉड डेफिनेशन आती है, ब्रॉड व्यू है। उसके बाद नैरो डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन वाले जो लोग हैं जो नैरो डेफिनेशन कहते हैं, वो कहते हैं ओनली एग्जीक्यूटिव, जो किंग है उसका कैबिनेट वैबिनेट, वही बस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है और कुछ नहीं, ठीक है। अभी इंडिया में हम नैरो डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो हमारा जुडिशरी, हमारा एग्जीक्यूटिव और हमारा जो लेजिस्लेचर है उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है सर। अभी आते हैं अभी ये वाला टॉपिक तो आई थिंक मीनिंग वीनिंग आपने समझ ली होगी। अभी आते हैं हम सिग्निफिकेंस पे। देखिए सिग्निफिकेंस की मीनिंग पहले समझिए। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। देखिए उसी एक्स वाई जेड एग्जाम वाई की एक्स वाई जेड विलेज की एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने आपको बोला था वहाँ डिफेंस ग्रुप है, वहाँ हेल्थ ग्रुप है, वहाँ और भी सारे ग्रुप्स हैं, डिफेंस ग्रुप, हेल्थ ग्रुप मैंने बोला था, डेवलपमेंट ग्रुप बोला था। अब मान लीजिए डिफेंस ग्रुप ने काम छोड़ा, हेल्थ ग्रुप ने काम छोड़ा, अब बाकी जो एजुकेशन ग्रुप था, डेवलपमेंट ग्रुप था सॉरी, उसने भी काम छोड़ दिया। अब क्या होगा, देखिए सब ने जब काम छोड़ दिया, गाँव में ना तो डेवलपमेंट होगी, ना तो किसी के लिए कोई दवाई होगी, ना तो कोई रोड बनेगा, ना कोई पुल बनेगा, ना डिफेंस देखी जाएगी, मतलब एक एनार्की आ जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आज समझे, सुबह आप उठते हैं, पानी नल से आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वाटर जो आपको सप्लाई करता है वो पीएचई है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पीडीडी, ठीक है। अब मान लीजिए ये सारे डिपार्टमेंट्स ने भी काम छोड़ दिया, मान लीजिए ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बंद हो गई है, इन्होंने काम करना छोड़ दिया, तो हमारी लाइफ तो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही हमारे की वजह से ही हमारे घर में पानी आता है, बिजली आती है, हमारी एजुकेशन चलती है, हमारा हेल्थ चलता है, हमारा ट्रांसपोर्ट चलता है। अगर ये सब चीज़ें बंद होगी, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बंद होगी तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ठीक है सर। अभी और एक चीज़ जो सिग्निफिकेंस है, हमें इसे डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन सिग्निफिकेंस को समझाने से पहले वेलफेयर स्टेट में आपको समझाता हूँ। देखिए वेलफेयर स्टेट एंड लेजिस्फेयर स्टेट, ठीक है। लेजिस्फेयर स्टेट में क्या होता था, जैसे पहले होता था किंग होता था, वो क्या करता था, किंग बस एक तो टैक्स करता था कलेक्ट, और थोड़ा वो देखता था डिफेंस का, लॉ एंड ऑर्डर का, इसके सिवा उसे कोई टेंशन नहीं होती थी। कोई जो उसके देश में जो रह रहा है इंसान, वो खाए पिए, उसके पास खाने के लिए कुछ है, वो मर तो नहीं रहा है, उसके लिए उसके पास मेडिसिन है, किंग को इसकी फिक्र नहीं होती थी। लेकिन इसके बरक्स जो हमारा स्टेट है आज का स्टेट, दैट इज़ वेलफेयर स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट चलती है हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे लिए हॉस्पिटल बनाए गवर्नमेंट, वही वेलफेयर है, हमारे लिए रोड्स बनाती है, हमारे लिए एजुकेशन के प्रोग्राम्स बनाती है। तो मतलब ये जो आज का स्टेट है ये वेलफेयर स्टेट है, लोगों की वेलफेयर के लिए ही चलता है, ठीक है जी। वेलफेयर स्टेट यू हैव अंडरस्टूड, एक ऐसा स्टेट जो लोगों की खुशहाली का ध्यान रखे, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, ठीक है जी। भी सिग्निफिकेंस अगर हम डिस्कस करें अलग अलग से कॉन्सेप्ट में, देखिए
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है जी, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा अगर स्टेट लेंगे, यहाँ पे गवर्नेंस क्या है, मतलब कि कोई हमारा जो है लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रख रहा है पुलिस, उसके बाद रोड्स बनाना है वो कोई डिपार्टमेंट बनाता है, मतलब हर एक चीज़ जो है उसका कोई सिस्टम है, कोई प्रॉपर उसका तरीका है, तो वो होती है गवर्नेंस। ठीक है, अब मान लीजिए ये ना होता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना होता, तो कोई पीस नहीं होती, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, कोई पब्लिक ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या करता है, ये गवर्नेंस इंश्योर करता है, पीस मेंटेन करता है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करता है, इंश्योर सेफ्टी, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी सेफ्टी। अब अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना होता तो गवर्नेंस ही नहीं होती, एनार्की हर तरफ से होती, कोई गवर्नेंस जब ना होती हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, हमारी लाइफ सेफ नहीं होती, हमारे पास मेडिसिन नहीं होती। ठीक है ना, तो मतलब इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है जी, दूसरा कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। देखिए सर्विसेज जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा चलता है, हमें डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मतलब ये हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही हमारी जो सर्विसेज हैं वो हम तक आ जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंक्रीजिंग रोल इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। ठीक है जी, मतलब कि जो पब्लिक पॉलिसी है उसको बनाने में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए पॉलिसी जो है ना, पब्लिक पॉलिसी अलग सा चैप्टर है, हमें अलग से डिस्कस करना है। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि पॉलिसी में आपको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। पॉलिसी मतलब फॉर एग्जांपल शाह फैसल कहते हैं कि हमें जो एजुकेशन है सबके लिए कंपलसरी करना है। अब मान लीजिए ये होगी पॉलिसी, मतलब ये एक गाइडलाइन बनता है, ये एक गाइड बनता है कि हमारी एक्शंस कैसे होंगी। जब हमें पता है कि हमें 100% अचीव करना है तो हम उसी के हिसाब से पैसा लगाएंगे, उसी के हिसाब से टीचर्स को लाएंगे। ठीक है जी, इतना समझिए अभी, बस इससे ज़्यादा कुछ ना समझिए क्योंकि आगे हमें डिस्कस करना है। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स एग्जीक्यूटिव इन आइडेंटिफाइंग पॉलिसी एरियाज। ये जो एग्जीक्यूटिव होता है, हमारे जो पॉलिटिशियन साहब होते हैं, ठीक है, नेता लोग होते हैं, उनको क्या होता है, उनको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से ही पॉलिसी एरियाज का पता चलता है। क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं हमारे आईएएस ऑफिसर्स या हमारे केएएस ऑफिसर्स। ठीक है जी, तो मतलब कहने का ये कि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको आइडेंटिफाई कराता है पॉलिसी एरियाज, उसको बोलता है कि पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम है, पॉलिसी में मॉडिफिकेशन क्या कहाँ करनी है, पॉलिसी को एनालाइज क्या करना है, या कोई प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना है, सॉल्यूशंस को ढूंढना है। मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है पॉलिसी बनाने में। और जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी बनती है उसकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी चलती है, उसकी वजह से ही हमारी खुशहाली होती है। ठीक है जी, एज सिंपल एज दैट। हमारी जो भी पॉलिसीज़ बनती है उसमें रोल है बहुत ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसलिए हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। देन एज एन इंजन ऑफ वेलफेयर स्टेट, जो मैंने आपको बोला था वेलफेयर स्टेट मतलब हमारी जो खुशहाली देखे वो स्टेट। अब अगर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट तभी है जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अगर 10-15 डिपार्टमेंट हैं तभी आपका हेल्थ कोई देख रहा है, कोई आपका जो पानी घर में आ रहा है वो देख रहा है। अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स ना होते, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना होता, तो वेलफेयर तो बात ही नहीं थी, वेलफेयर स्टेट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है ना, उसके बाद एज एन एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। देखिए हमारी जो स्टेट है या हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से ही जो भी डेवलपमेंट होती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही होती है। ठीक है ना जी, जैसे आप देखिए लार्ज स्केल प्रोग्राम्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए लार्ज स्केल प्रोग्राम बनाया, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया, ये सारे प्रोग्राम्स कौन बनाता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही बनते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा जो डेवलपमेंट है, तरक्की मान लीजिए आप, वो कोर इशू होता है गवर्नेंस। जब आप देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रही है, रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तब आप कहेंगे कि गवर्नेंस हो रही है। मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना होता तो डेवलपमेंट ना होती, इसलिए ये हमारा एजेंसी है, डेवलपमेंट भी इसकी वजह से ही होती है, प्रोग्रेस जो हमारी तरक्की होती है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही होती है। ठीक है जी, तो अभी तक आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई हों। ठीक है जी, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कॉल मी ऑन माई नंबर 962272
1782। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से इसको पढ़िए। टेक केयर, सी यू।